Dear ACCA candidates, I know that it's the examination time and the paper which you are gonna to appear is APM, Advanced Performance Management. And somehow बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एपीएम से डरते हैं एंड उनको लगता है कि एपीएम टफ है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स स्ट्रगल इन एपीएम, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द लीस्ट पास परसेंटेज ऑफ एपीएम। बट देर इज अनदर टेक इन दिस थिंग, बिकॉज एपीएम का जो है पास परसेंटेज कम क्यों है, इट्स जस्ट अगेन द मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर। तो अब हमारे लिए जरूरी क्या है कि एपीएम का पेपर टेस्ट कैसे होता है ये देखना, उसकी रिक्वायरमेंट समझना। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी दैट यस, इन योर एपीएम पेपर what your approach should be. See, you have to consider yourself just like a consultant. It is not a numeric paper. I know that it's the extension of performance management, which is the costing paper, but your approach should be now more of the analysis part rather than just mugging up the concept, or rather than just applying the bookish knowledge or calculation part. Yes, there is calculation around 30 to 40 marks is the calculation portion, but the rest of the portion is depending upon the application of the calculation portion. Now how you will be applying that calculation portion over here. So वो आपके लिए ये important है एपीएम के पेपर में कि आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। आपको कंसल्टेंट की तरह सोचना है, एंड अगेन कैलकुलेशन पोर्शन को यू हैव टू प्रेजेंट इन योर एक्सेल शीट प्रॉपर, आपकी कैलकुलेशन जो आपने दिखानी है। सो मेक श्योर यू आर कंसीडरिंग दीज सिनेरियोज। Apart from that, another tip which I want to share for APM paper is make sure that you are considering your professional marks in your ACCA professional level paper. Professional marks are very much relevant, and it is important to consider these 20 marks because these are free of cost marks basically. So make sure that you are considering these marks. And again, the next thing which you need to consider is in your APM that like your way of presentation should be clear, concise, and yes, reporting based questions. So there are certain questions which are quite predictable. So yes, the topics are quite similar to SBL. The students who have appeared in SBL, they might think that okay, this is the SBL वाला syllabus, तो वही वाला syllabus area हमारे लिए easy होगा, वही same approach लिख देंगे. No, maybe you have cleared your SBL in first go, or maybe you are planning to okay, that yes, we will be covering the area according to the SBL approach, but the models are same. The good thing is that you don't need to understand the model, different model, but the thought process and the application process of the model is quite different. So make sure that you are applying the model according to the requirement and according to the scenario. Again, the next thing which is important in your APM paper is your KPIs, your CSFs, which I will be guiding you today, that how to apply them, how to use them. So this is the main tip which I want to share. And the last but not the least, time management. Make sure that you are not running out of your time. So what I followed during my journey was that okay, मैं कभी 1.8 per minute वाला per mark वाला rule कभी नहीं follow किया. What I used is 3 hours 15 minutes का मेरा exam है. I divided it between 3 hours का time and 15 minutes was my grace time. मेरे accordingly मेरा paper is just for 3 hours. So I divided 1.5 hours in my first question, 45 minutes in my second question. Most of the time student are not able to manage according to the time which they have settled. So I know that ये भी हो सकता है that yes, I am not able to manage within 1 hour 30 minutes for my question number one. But I have some grace time period in backend, so that's why it should be understood that okay, you have to make sure that you are managing according to the given set time period, so that you have certain extra time to bear with some uncertainty, or maybe there are certain question areas which you are not familiar with, so you should know about that as well. Now let's start the journey of APM, and being a revisionary session, I will be going little faster, and I won't be just considering each and every minute detail in these
lectures in these revision series. But I am, you all know that maybe you all are my student. So in our regular classes, we consider each and everything in detail, but considering the time limitation of me as well as you are, we will be just going on a fast track mode. Maybe you will be hearing this lecture while you will be traveling. So yes, you need to understand about certain few terms, and this is the most important thing, specifically when we are attempting question number one, performance reporting related area, because for an organization, it is important to understand what their mission is. तो मिशन क्या होता है, दैट इज कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है. मिशन से वो डिफाइन होता है दैट इज व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग. इफ आई कंसीडर माय मिशन इज टू हेल्प यू टू अचीव योर ग्रोथ, अचीव योर गोल. सो अब देखो मेरे मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या फैक्टर्स को मैं इंक्लूड करूंगी. देखो मेरा पर्पस क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे वो दिखाना है. एंड यस, ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी स्टेक होल्डर्स क्या है, मुझे वो बताने हैं. हाउ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स. तो और दूसरा क्या है कि आपने कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन आप कैसे करोगे, हमारे लिए ये बताना जरूरी है. दैट यस व्हाट वी आर गोना टू डू स्पेसिफिक टू हेल्प देम फॉर देयर वैल्यू क्रिएशन. एंड अगेन, कैसे मेरी कंपनी जो है बाकी सारी कंपनी से डिफरेंट है, हम उससे ये देखते हैं. एंड यस, सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क टू इवैल्यूएट द करंट एक्टिविटी. सो मिशन स्टेटमेंट जो क्या होता है कि यस, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में जो एक्टिविटीज कर रही है वो सही से कर भी रही है या नहीं. सो ये सारे फैक्टर्स जो है मेरे मिशन स्टेटमेंट में मुझे मिलते हैं. एंड इन योर एपीएम पेपर, मेक श्योर दैट यू आर कंसीडरिंग योर मिशन. आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन होगा, आपके सीएसएफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आप उसके लिंक करने चाहिए. आपको इस बात का ध्यान रखना है खास करके. एंड केपीआईस को उससे लिंक करना है. एंड यस, वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज इन अलाइन विद योर मिशन और नॉट, सो मेक श्योर अबाउट दैट एरिया. नाउ, अब मिशन का फायदा भी देखो, हमें पता है कि इस कंफ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी नो मुझे क्या करना है. मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्लियर होंगी, मेरे एम्प्लॉयज को हमारी की वैल्यूज क्लियर होंगी. एंड यस, व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग, वी विल बी अवेयर अबाउट दैट थिंग एट एन अर्ली स्टेज. एंड यस, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन. तो देखो इससे क्या होगा कि मुझे, इट इज मिस प्रिंटिंग, ओके, इट इज प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कि यस, कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक गाइड मिल जाएगा कि यस हमने कहाँ जाना है. बट yes, there are certain drawbacks also कि yes, देखो कई बार क्या होता है, we are unclear that what my mission is, right? कहाँ जाना है, कैसे करना है. There is some cluster scenario. Again, unnoticeable. Sometimes we ignore our actual mission is and we just go with the flow. Next, and yes, next is not represent the actual value. So sometimes what happen is that your mission is not gonna to represent what your actual value is, what your organization main value is, क्या आपके organization के लिए जरूरी है. And yes, lack of sufficient external focus. So sometimes we are just focused on the mission, but we are not focused on what is going in the industry. वो मेरे लिए जरूरी है. Now next is difference between mission and vision. देखो vision जो होता है, what I remember in my time period, देखो vision means I said से like. So that means मैं क्या देख रही हूँ, मेरा फ्यूचर देख रही हूँ, that is मेरा vision. So vision की हेल्प से मुझे फ्यूचर दिखता है. मिशन क्या है, कंसर्न व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज मेरा मिशन. गिव्स द ओवरऑल पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग पर्पस पता चलता है. बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द विजन, विजन क्या बताता है कि इसकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर को किस तरह से देखती है. एंड यस, डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ द प्रेफर्ड फ्यूचर, कि यस, कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा. मुझे इससे मिशन से, ये विजन से ये पता चल जाएगा ओके, इफ वी अचीव आवर मिशन, how actually we will look like. Now, important terms to understand. There are certain terms which we should consider in our mind, which is CSF. देखो CSF क्या होता है, एक ऐसे एरियाज जिसमें मेरा बिजनेस जो है ग्रो करेगा ही करेगा, एंड दैट आर क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ माय बिजनेस. अगर मैं इन पे फोकस नहीं कर पाई तो दैट इज समहाउ स्ट्रगलिंग फॉर माय बिजनेस. सो बीइंग अ बिजनेस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फोकस ऑन माय क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. एंड व्हाट आर माय केपीएस, केपीएस से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि मेरा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म में इसको मेजर कर सकते हैं. नॉन फाइनेंशियल को भी हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं. with that we try to understand that whether our organization is in a position to achieve our critical success factor or अब द नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो देखो जब कभी भी सीएसएफ और केपीएस की बात होती है, देखो हर एक मैनेजर के लिए, बिकॉज इन एपीएम यू विल बी कंसीडरिंग द सिलेबस एरिया एज पर द मैनेजर टर्म्स. सो हर एक मैनेजर के लिए ये इंपॉर्टेंट है
कि आप अपने सीएसएफ के ऊपर फोकस करें। कुछ ऐसे सीएसएफ होंगे जो कि आपके इंटरनल होंगे, कुछ ऐसे सीएसएफ होंगे जो कि आपके एक्सटर्नल होंगे। सो इंटरनल वन आर द वन which we can control maybe somehow. So yes, every manager interest internal CSF linked to their internal department and individual they oversees. These CSF encompass a wide range of areas of interest ranging from human resource development and inventory control. The central feature of these internal CSF is that the focus is matter entirely on within the management realm of influence and control. तो देखो अब वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, दैट यस वेदर माय मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन टू कंट्रोल दैट और नॉट, बिकॉज इंटरनल चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में होंगी, आई विल बी कंसीडरिंग दैट। नाउ एक्सटर्नल जो होते हैं देखो वो ऐसे होते हैं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर है, इनडायरेक्टली मे बी वी कैन कंट्रोल दैट, बट ये जस्ट लाइक इफ आई हैव टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम यू, जस्ट से एन एग्जांपल, I am in a position to pay you money for that. But maybe if you are, not supplying me on a time, I can go and force that, okay, just give me right now. Maybe there is a strike going on at your end. So there are certain factors which we can't control, and these factors are my outsider factors. नाउ अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। देखो एक ऐसे मैनेजर होते हैं जो कि ऑपरेशनल एरियाज को होल्ड करते हैं, दैट मीन्स वो क्या करते हैं, मॉनिटर करने का काम करते हैं। बट देयर आर सर्टेन मैनेजर जो कि एंटरप्रेन्योरल टाइप काम करते हैं, जिनका मेन स्ट्रेटेजिक फोकस होता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, दैट मीन्स कि मुझे सीएसएफ खुद से कंस्ट्रक्ट करने हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कौन से सीएसएफ जो है इंपॉर्टेंट है, आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज एरियाज। सो यस, वो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ लिंक करते हैं। Now, moving ahead, see guys, being little faster, reason being you know that. Now, अब मेरे पास नेक्स्ट एरिया आता है मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर मेरे दो तरह के होते हैं, लाइक कुछ ऐसे जो कि मेरे प्रीवियस पार्ट में थे, कुछ ऐसे जो कि अभी मेरे प्रीवियस पार्ट में नहीं है, जो कि हमारे एपीएम सिलेबस एरिया में इंट्रोड्यूस किए गए। सो सी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज आई वाज डिस्कसिंग कि दो तरह के आपके पास इसमें आएंगे, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो कि आपने पीएम में, अपने एफआर पेपर में या फिर प्रीवियस किसी एमए पेपर में कवर किए हुए हैं, एंड देयर आर सर्टेन एरियाज जो कि आपने कवर नहीं किए हुए हैं हमारे पीएम एरिया पे। सो देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर, देखो हमारा जो बिजनेस होता है उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिटेबिलिटी ही होता है कि यस कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो उसके लिए हमारे लिए पास जरूरत है कि यस हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर को जाने। तो यस बिजनेस में हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस निकालते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या मेरा बिजनेस लिक्विड है। लिक्विड मीन्स लिक्विड रिसोर्सेज हैं कि कोई अगर इफ आई नीड टू पे सम मनी, तो क्या मेरे पास लाइक करंट लायबिलिटीज हैं वो पे करने के लायक मेरे पास पैसे हैं। करंट रेशियो, आई कैलकुलेट माय एसेट टेक्स रेशियो, सो इन्वेंट्री साइकिल रेशियो। तो ये कुछ रेशियोज हम निकालते हैं अपने लिक्विडिटी के रिस्पेक्ट में। एंड अगेन आई ऑल्सो मेजर द रिस्क। रिस्क में देखो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी कंपनी जो है कितनी गियर्ड है, दैट मीन्स द कैपेसिटी टू बोरो सम मोर मनी। तो ये सारी रेशियोज जो है हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। So I am not gonna to guide you regarding these formulas. If you want to, you can have these notes and you can revise your formulas. So liquidity ratios में हम क्या देखते हैं, देखो profitability ratios में मैं profitability related formulas, just that could be the return on capital employed, that could be the operating profit margin, that could be the ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे कुछ रेशियोज में देखते हैं। सो अब उसके अलावा मेरे पास आती है लिक्विडिटी रिलेटेड रेशियो, जिसमें कि मैं क्या मेजर करती हूँ, मेरी करंट रेशियो, दैट कुड बी लाइक मेरी एसिड टेस्ट रेशियो, एंड अगेन देयर कुड बी सम इन्वेंटरी रिलेटेड रेशियो। सो ऐसे कुछ रेशियोज में मेजर करती हूँ मेरे लिक्विडिटी रेशियोज में। देन नेक्स्ट इज आई हैव द रिस्क रिलेटेड रेशियोज। तो अगर रिस्क रिलेटेड रेशियोज में मैं बात करूं कि उसमें मैं क्या चेक करती हूँ कि मेरी कंपनी कितनी गियर्ड है। गियर्ड मीन्स डेट इक्विटी रेशियो, गियरिंग लेवल जो है वो चेक करते हैं, ऑपरेटिंग गियरिंग, फाइनेंशियल गियरिंग, ये कुछ रेशियोज हम जो है गियरिंग रेशियोज में कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब कुछ ऐसी रेशियोज जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी हुई हैं, आपने पीएम लेवल पे वो हम जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो स्पेसिफिकली क्या है, मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी जैसे कि रेशियोज, जो कि सबसे पहले मेरे पास आता है इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो देखो ये क्या है, ये मेरी अर्निंग मेयर के ऊपर बेस्ड है। एंड ये हम कहाँ पे देखते हैं, ये उन केसेस में हम देखते हैं जहां पर जोन सी कंपनीज में मेरा फिक्स्ड एसेट काफी ज्यादा है
एंड यस उन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसी वी हैव टू कंसीडर दैट विच रेशियो विल बी सुटेबल इन विच इंडस्ट्री विच कंपनी। तो जहां मेरे फिक्स एसेट ज्यादा है क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा, जहां मेरे लाइक इंटेंजिबल एसेट ज्यादा है बिकॉज उनके ऊपर मेरे पास अमोर्टाइजेशन चार्ज लगेगा। सो यस, या फिर कोई ऐसी कंपनी जहां पर डेट फाइनेंसिंग के ऊपर हम डिपेंडेंट है, मतलब कि एक्सटर्नल डेट के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा, तो वहां पर मेरे लिए ये ज्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट मेरे पास इन्हीं के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो ये इनकी क्या है कि ये मेरी इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है यहाँ पर मेरा नॉन कैश आइटम्स होता है एंड आर सब्जेक्ट टू जजमेंट सच एज यूजफुल लाइफ। अब देखो, अब ये मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मेरे को पता है मैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को इग्नोर करके चलती हूँ। जैसे कि यूजफुल लाइफ होगा, रेजिडुअल इनकम होगा, इन सब चीजों को मैं इग्नोर करके चलती हूँ बिकॉज वी नो दैट ये कंपनी टू कंपनी हर एक की अलग पॉलिसी होती है और वो कंपैरिजन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। Again, it is a substitute of cash flow from operations, so it is a good measure of underlying the performance. तो देखो ये मेरा कैश फ्लो का सब्सटीट्यूट है, तो इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इसको मेजर करके चलूं मैं। इंटरेस्ट एंड टैक्स बियरिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सटर्नल कॉस्ट, सो इरेलीवेंट व्हेन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। तो अगेन हम यहाँ पर इंटरेस्ट भी इग्नोर करके चलते हैं, क्यों? क्योंकि ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सटर्नल कॉस्ट है, मतलब कि मेरी डेली ऑपरेशन से रिलेट नहीं करता। वो ऐसी एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होते हैं, डेली बिजनेस एरिया से। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन से खर्चों को देखना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेरे डेली वेयर के खर्चे होते हैं, जो कि बिजनेस एरिया से रिलेट होते हैं। सो वो खर्चे मैं इसमें कंसीडर करती हूँ, जो डेली नहीं होते मैं उसको इग्नोर करती हूँ, जैसे कि डेप्रिसिएशन, नॉन कैश। सो इसीलिए इसका बेनिफिट है कि थोड़ा सा मुझे ट्रू पिक्चराइजेशन मिलता है। And again, it is a useful measures for all the manager department that do not have control over acquisition and financial decision। एक्विजिशन अक्वायर किया, फाइनेंशियल रिलेटेड, सो उस वाले सिनेरियो में मुझे इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट अगेन इफ आई कैलकुलेट और डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस, देखो मैनिपुलेशन, क्योंकि कैपिटलाइजेशन करने में, अब डेप्रिसिएशन है, मैं कैपिटलाइजेशन में मैनिपुलेशन कर दूं तो अगेन इट कुड बी डिसएडवांटेजेस। एंड यस, इट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द कैश फ्लो रिलेटिंग टू वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल रिप्लेसमेंट। तो ये चीजें जो है कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट इज मेरे पास ईपीएस विच इज नोन एज अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी कंपनी का पर शेयर के ऊपर मुझे कितनी अर्निंग हो रही है, मुझे उससे ये पता चलता है। एंड यस, दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेटर बिकॉज इसके बेस पे इन्वेस्टर जो है डिसाइड करेगा कि इस उस पर्टिकुलर कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। जिस कंट्री की ईपीएस ज्यादा होगी मुझे उस कंट्री में कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिसकी ईपीएस कम होगी मुझे वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आता है पैट, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब ये इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट मतलब मेरा अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर। सो इसका फॉर्मूला हो गया। एंड अगेन इसके एडवांटेजेस, सी इट इज वेरी इजी क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। एंड ये इससे कंपैरिजन जो होता है कंपनी ए एंड कंपनी बी, सो इफ आई हैव टू डिसाइड बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी एंड सेक्टर ए एंड सेक्टर बी, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगेन में यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकते हैं ड्यू टू अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड स्टडी हैव शोन दैट ईपीएस हैज पुअर कोरिलेशन विद शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो अब ईपीएस की जो है शेयर होल्डर वैल्यू के साथ अच्छा कोरिलेशन नहीं है। एंड फॉर योर नॉलेज पर्पस, इन एपीएम यू विल बी कंसीडरिंग दोस रेशियोज जो कि आपके शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन को लिए अच्छे होते हैं, वो आप कंसीडर करोगे। सो नाउ अगेन नेक्स्ट मेरे पास रेशियो आती है डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड, देखो डिविडेंड फाइनेंशियल रेशियो, जो कि मतलब कि कोई कंपनी डिविडेंड कैसे देती है इन परसेंट इन रिस्पॉन्स टू शेयर प्राइस। शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो डिविडेंड कितना मिलेगा, शेयर प्राइस कम हो रहा है तो कितना मिलेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो अगर जब मेरे पास डिविडेंड यील्ड मतलब मेरे को कैलकुलेट करना है, तो देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कैलकुलेटिंग डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। तो मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने से पर शेयर के ऊपर मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है, यील्ड यानी कि मेरा आउटपुट। सो आई विल बी मेजरिंग दैट ऑन दिस रेशियो। नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। नेम से ही पता चल रहा है प्राइस और अर्निंग। सो बेसिकली शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। सो बेसिकली ये क्या देखता है कि यस कि शेयर का प्राइस के का रिलेशनशिप विद कंपनी की अर्निंग। तो इससे यस कि मेरा मार्केट जो है शेयर के बेस पे कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट इज अर्निंग यील्ड। तो बेसिकली ये क्या है, इनवर्स ऑफ पी रेशियो है। एंड यस इससे हम क्या देखते हैं कि यस एक शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उसके बेस पे कितना मुझे रिटर्न जो है आ रहा है। नेक्स्ट आती है मेरे पास एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इसमें क्या आता है,
PV of all cash flows एंड कैश आउटफ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, उन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। जिस कैश फ्लो की पीवी पॉजिटिव आती है, मैं उस कैश फ्लो में इन्वेस्ट करती हूँ। एंड अगेन ये क्यों एडवांटेजेस होता है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑल कैश फ्लो, दैट मीन्स मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करती हूँ। मतलब कि वी नो दैट इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 रुपी टूडे, इसकी वैल्यू आज से 2 साल बाद कुछ और होगी, आज से 2 साल पहले कुछ और थी, तो उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इसमें कंसीडर करके चलते हैं। सो दैट्स व्हाई इसका जो है शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएशन के साथ भी अच्छा लिंक होता है, कैश फ्लो के साथ भी लिंक होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम होने के चांस होते हैं। एंड यस, अगेन ये सारी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को कंसीडर करता है। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो जो कि सिमिलर नहीं होते, उसको भी कंसीडर कर लेता है। इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो भी वो कंसीडर हो जाता है। एंड यस, अब इसके अगर डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो ये इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा, बट यस इट इज इजी इफ यू कंसीडर दैट व्हाइल कैलकुलेशन, इट इज अगेन इजी। सो इस अब इसकी जो कैलकुलेशन है कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड, एंड यस वो अजम्पशन जैसे कि कैश फ्लो, टाइमिंग, और वो अजम्पशन गलत भी हो सकती है। एंड यस अगेन ये मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए अच्छी मेथड नहीं है। Now next Maya, जो कि है मेरी sensitivity analysis. Guys, just to let you know, in your PM paper you used to calculate most of the ratios. यहाँ पर compulsory नहीं है कि आपके पास इतनी ज्यादा calculation portion आएगा. Maybe the calculation will be lesser, but you need to interpret that. Now next is the sensitivity analysis. देखो sensitivity analysis क्या है? It is a technique from which it is possible to identify the critical variable, जैसे कि मेरा share price, labor cost, वो चेंज होंगे अगर कोई एक डिसीजन के चेंज होने से, मतलब कि एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब कि अगर एनपीवी क्या इफेक्ट होके जाएगा अगर मेरा कोई भी एक फैक्टर जो है चेंज हो गया। सो यस, अगेन नेक्स्ट मेरे पास आता है आईआरआर। ठीक है, आईआरआर क्या होता है कि ये कहाँ पे होता है, जब मेरे पास कैश फ्लो की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट क्या है। सो यस, इससे मुझे पता क्या चलता है कि कौन सा डिस्काउंटेड रेट होगा जिसपे मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जीरो है, एक ऐसा रेट जिसपे मेरा एनपीवी जो है जीरो होगा, आप इससे वो कैलकुलेट करते हो। एंड यस अगेन इफ आई यू मेंशन यू, हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो भी ऐसे होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ये जिसका आईआरआर मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा, मुझे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, ये इसकी मैथडोलॉजी होती है। अगेन इट इज वेरी इजी एंड सिंपल है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एनपीवी मेजरमेंट, राइट। एंड यस, ये मुझे बता देता है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट जो है ज्यादा रिस्की है, दैट मीन्स विच प्रोजेक्ट इज मोर सेंसिटिव टू द रिटर्न्स। तो उसके बेस पे मैं डिसाइड करती हूँ कि yes, मुझे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं। बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट टू कैलकुलेट है। एंड ये इसका एस्टिमेशन किसके ऊपर बेस्ड है, इंट्रापोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। और इंट्रापोलेशन फिर भी ठीक है, एक्सट्रापोलेशन जो है आउट ऑफ द वे रिजल्ट देके जाएगा। सो यस अगेन इफ इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, तो मेरे पास जो है इंफॉर्मेशन जो है हो सकता है सही ना आए। Now, next is my non-financial indicators. So guys, make sure whenever, if you get question regarding the financial information, financial indicators, you show the calculation part separately in your Excel working, right? वो जरूर दिखाना है and उसको बाद में interpret करके देना है। अब next area, next chapter area, which is my non-financial. So non-financial performance indicators are again important, just like the financial indicator, because see, in today's time period, financial is important, but on the other hand, for the long-term survival, long-term, information based, it is important to understand some non-financial indicators. सो अब लाइक नॉन फाइनेंशियल में मेरे पास क्या आ जाता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मेरा कस्टमर, देन मेरा सप्लायर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, then maybe the information regarding my internal areas, my employees. So it is very important to have information regarding the non-financial indicators. So today, in order for a company to compete, even survive, company must use non-financial numbers
in everyday operation. The main problem for the company is how to quantify their non-financial measures. In previous topics, emphasis was placed on the financial performance indicator, which is important for measuring the financial performance. But again, we have to make sure that okay, कि yes, financial performance indicator जो है अच्छे हैं, right? That they are giving me information regarding the financial indicators in a very good way. But अगर मैं नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करूं तो वो क्या है, लाइक दे आर ऑन द बेस्ड ऑफ द शॉर्ट टर्मिनिज्म. तो देखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो क्या हो सकते हैं कि लाइक वो शॉर्ट टर्म के ऊपर बेस्ड करेंगे. शॉर्ट टर्म लाइक लाइक द इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन की यस की पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, मे बी नेक्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट होगा. सो बट yes they don't consider okay आने वाले 5 साल और आने वाले 10 साल. Again concentrated, yes, they are just focused on the the profitability related area. They are not considering the other important aspect just like the customer satisfaction. Now, manage result, just earn profit and manage. Managers may manipulate the results so that it would be to show that the target it is achieved. So again, इसमें मेरे लिए क्या important है कि yes कि इनका profitability है, right? कि yes कि इनका मेन मोटिव क्या है कि yes मुझे प्रॉफिट अचीव करना. सो उस प्रॉफिट अचीव करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. Now next is does not show everything. So again इसमें क्या है, these indicators basically give the limited advantage to the company on the whole due to the fact that they do not convey the whole picture since they do not take account of the factors such as quality, innovation. Additionally, these indicators are traditionally historic. So अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो factors हैं, ये क्या करते हैं, ये सारा एरिया नहीं दिखाते. जस्ट वी हैव वन साइड ऑफ द स्टोरी, वी डोंट हैव द अदर एरिया ऑफ द स्टोरी इन दीज केसेस. सो द नेक्स्ट इज, so if I do the comparison of financial as well as non financial performance indicator, जो मेरे non financial performance indicator होते हैं वो मुझे long term performance दिखाते हैं and they are good indicators with respect to future and they are based on the qualitative factors like external factors just like quality, reliability, customer satisfactions. So these things are covered under my non financial indicators. But if I talk about the financial indicators, they are the backward looking and again they are just conserved about one area only. But yes, they both are essential for एनी बिजनेस एरिया. देखो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना है, शॉर्ट टर्म भी देखना है एंड अगेन मुझे लॉन्ग टर्म भी जाना है. सो इफ यू विल बी गेटिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट रिलेटिंग क्वेश्चन एरिया एंड इफ द रिपोर्ट इज गिविंग यू और इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिसाइजेस, राइट, क्रिटिसिज्म, तो उसमें व्हाट यू हैव टू सी इज इफ एवरीथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन. सो द फर्स्ट टारगेट एरिया which you will be getting is the the information is mainly on the financial nature. Now next is the link of NFPI and business performance indicators. So अब जो non financial indicators है उसका business से कैसे link होगा. First area is regarding the labor employment. देखो labor जो है is a solid asset for any organization. Initially labor was assessed only through the cost which is a FPI. But gradually organization realized that their benefit is necessary to employ the experienced, skilled and qualified labor as to increase the company performance, cut cost and price for the best product. तो देखो अब these non financial performance indicators की अगर मैं बात करूं तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, द अदर एरियाज जैसे कि क्वालिटी, लेबर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है एंड ब्रांड वैल्यू है. सो ये सारी चीजें कि मेरा कस्टमर कितना, अब क्वालिटी से मुझे पता चलेगा कि मेरा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है. कस्टमर अगर जो सेटिस्फाई होगा वो प्रोडक्ट बार बार लेगा because they will be liking our product and they are ready to pay the premium price of the product. But again if the criteria which customer wants is not satisfied, they will be jumping towards the another competitor. So that won't be good for our organization. So it is important for any business to make sure that they are in a position to link the non financial factors with the business performance. लेबर खुश है तो वो यहाँ पे रहेगी, अच्छा efficiency improve होगा. And again earlier it was considered that okay labor is a cost, but now we consider that okay labor is somehow the revenue generated area.
क्वालिटी बढ़ेगी। अगेन नेक्स्ट एरिया विच यू नीड टू कंसीडर इज द ब्रांड। देखो ब्रांड जो है इट इट कुड बी द आइडेंटिटी, लाइक द एप्पल, द द सैमसंग, द हुंडई, द मर्सिडीज, दीज आर द ब्रांड। और कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो कर रही है तो वो कैसे होगा, ब्रांड के नेम से करेगा। नाउ नेक्स्ट इज इवेलुएटिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अगर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर मेरे को देखना है तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये क्या इंपॉर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट क्या है, सीएसएफ। सीएसएफ क्या होता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक की सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, सीएसएफ जरूरी है। सो सीएसएफ क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सीएसएफ आर द एरियाज इन विच द बिजनेस शुड विन। सो these are the good indicators about whether the business will achieve its primary objective or not। तो देखो किसी भी बिजनेस के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, कि यस की बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। अगर वो एरिया में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। दैट मीन्स दीज एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस एरिया। नाउ परफॉर्मेंस के रिगार्डिंगली अगर मैं बात करूं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, सो केपीआईज टेल अस वेदर द सीएसएफ विल बी अचीव्ड और नॉट। तो केपीआईज क्या बताएंगे कि यस वो सीएसएफ जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक मे बी आई हैव द असेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मे बी आई हैव गुड एम्प्लॉयज, मे बी आई हैव द असेस टू द कस्टमर्स, राइट। कस्टमर्स के लिए आई एम द ओनली सोर्स। सो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड केपीआईज क्या बताएंगे कि यस कि वो अचीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। And yes, just like as stated earlier, organization need to strike a balance between financial and non-financial indicators, and there are the three models designed for it. So उसके लिए हमारे पास तीन मॉडल्स हैं, क्या क्या है, राइट। कैपलान एंड नॉर्टन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड परफॉर्मेंस पिरामिड। तो ये तीन तरह के जो है मेरे पास मॉडल इसके रिगार्डिंगली अवेलेबल है। सो देखिए वो एरियाज क्या है, वो मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सो ये एडवांटेजेस, अब देखो अब ये जितने भी मॉडल्स हैं जो अभी हम कवर करने वाले हैं, इन सबका मेन बेसिक एडवांटेज क्या होने वाला है, दैट दे आर बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। सो अब देखो अगर मैं फाइनेंशियल रिगार्डिंगली बात करूं, राइट, तो बेसिकली ये क्या होगा कि यस दे कंसीडर बोथ द एरियाज, लाइक क्लियर पिक्चराइजेशन मुझे मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। अगेन बोथ द फैक्टर्स विल बी अवेलेबल इन दीज मॉडल्स। सो अब करते हैं इसमें क्या क्या है, देखिए। सो बैलेंस स्कोर कार्ड एंड फर्स्ट मॉडल इज बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल का क्या है कि इसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर वर्क करता है, लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अगेन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। सो ऑल द फैक्टर्स आर कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर मॉडल एरिया। सो अब देखो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हम ऑलरेडी पहले भी कंसीडर करते थे। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होते थे, राइट, कि इसकी कैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएट होगी, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन रिलेटेड एरिया। सो वो सारी चीजें क्या होगी मेरी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। अगेन लाइक इसकी एग्जांपल्स में मैं अगर देखूं तो क्या क्या हो सकते हैं, लाइक देयर आर सर्टेन सीएसएफ्स जैसे कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। और फाइनेंशियल में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना, बस थिंग। नेक्स्ट इज बिजनेस सबसे पहले सरवाइव कर पाए, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल हो, फिर आगे ग्रोथ हो। तो ग्रोथ हम कहाँ से मेजर करेंगे कि वो हो रही है या नहीं, दैट इज मेरा केपीआई। और उसके लिए मैं केपीआई कौन सा सेटल करूंगी, मार्केट शेयर। सो दीज आर द सर्टेन वेज टू कैलकुलेट और टू डिफाइन द केपीआईज। अब जैसे सर्वाइवल है, सर्वाइवल कब होगा, जब मेरे खर्चे पूरे हो पा रहे, आई एम एबल टू बियर माई एक्सपेंसेस। सो वो कैसे हो सकता है, जस्ट लाइक जैसे कि मेरा सर्वाइवल जो है लिक्विडिटी रिलेटेड रेशियो से होगा। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स विच विल गिव मी आइडिया अबाउट माय सर्वाइवल प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज मेरा नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो कि मेरा क्या है, कस्टमर पर्सपेक्टिव। सो कस्टमर पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं अगर जाऊं तो वो क्या है, इट मेजर्स हाउ द बिजनेस इज डीलिंग विद इट्स कस्टमर, व्हाट कस्टमर वैल्यू इन इट्स बिजनेस। तो देखो मेरे कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें कवर करूंगी कि यस व्हाट एरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर माय बिजनेस। अब देखो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे कस्टमर के लिए अगर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स में देखूं तो वो क्या है, लाइक कस्टमर के लिए लाइक अच्छी क्वालिटी,
राइट। अगेन क्वालिटी के बेस में मैं क्या देखूंगी कि यस कि दैट कुड बी बेस्ड अपॉन द लाइक डिफेक्ट्स कितने हैं, डिफेक्ट्स जितने ज्यादा क्वालिटी उतनी कम। अगेन रिस्पॉन्सिवनेस, मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कितने टाइम पीरियड में पूरा कर पा रही हूँ। सो दैट इज अगेन मैं कितने रिस्पॉन्सिव हूँ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन किससे पता चलता है, कस्टमर स्कोरिंग रेट से। जैसे कि इफ वी हैव द एग्जांपल रिगार्डिंग दैट एरिया, वी डू द रेटिंग। ओके, हम रेटिंग कराते हैं कि यस कि कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं। एंड लाइक लाइक पोल होता है। सो लाइक नॉर्मली व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम Amazon, तो वो क्या बोलते हैं कि यस कि रेट अस। सो वो क्या हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हो गया। नाउ नेक्स्ट एरिया इज इंटरनल पर्सपेक्टिव। तो इसमें मुझे क्या पता चलता है, एफिशिएंसी, मेरा बिजनेस कितना एफिशिएंट है, क्या क्या प्रोसेस है मेरे बिजनेस की शेयर होल्डर की वेल्थ के सेटिस्फेक्शन के लिए। सो अब मेरा, मैं अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकती हूँ, हो गया वो मेरी एफिशिएंसी लेवल पे। सो वो एफिशिएंसी लेवल मैं कैसे देखूंगी, देखो उसके लिए मेरे पास क्या है, सीएसएफ एंड अगेन केपीएस है। तो सीएसएफ कौन से एरियाज होगी जो कि मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे कि ऑपरेशनल एक्सीलेंस, मेरा बिजनेस ऑपरेट अच्छे से कर पा रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, कितना कैसा मेरा साइकिल टाइम है। अगेन सिस्टम रन मेरा कैसे है। सो दीज फैक्टर विल डिसाइड मी मेरा बिजनेस कितना ऑपरेट अच्छे से कर रहा है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अगर एम्प्लॉय अच्छे से सेटिस्फाइड है, देन अगेन मेरा बिजनेस सही है। सो ये उससे कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं, लेबर टर्नओवर से, कि जितने ज्यादा लोग छोड़ के जाएंगे दैट मीन्स कि मेरा बिजनेस का इंटरनल एरिया में इश्यूज है। तो अगर बिजनेस के इंटरनल एरियाज में इशू है, वी नीड टू वर्क ऑन द इंटरनल एरियाज अच्छे से। सो दिस इज रिगार्डिंग मेरा इंटरनल इनोवेशन रिलेटेड एरिया। अब इनोवेशन रिलेटेड एरिया में मेरे पास क्या होगा कि मेरा बिजनेस कैसे इनोवेट कर रहा है, लाइक हाउ माय बिजनेस इज ग्रोइंग, हाउ माय बिजनेस इज थिंकिंग अबाउट इट्स फ्यूचर। तो कैसे फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्रिएशन हो रही है, दैट इज ऑल अबाउट इनोवेशन। तो उसमें क्या क्या है, सीएसएफ एंड केपीएस। सो सीएसएफ क्या होते हैं, लाइक इनोवेशन, लाइक इनोवेशन में क्या देखूंगी कि मेरे नए प्रोडक्ट में कैसे इनकम जनरेट हो रही है। राइट। स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट रिलेटेड एरिया में मैं क्या देखूंगी कि कितना टाइम मेरे स्टाफ का उस प्रोडक्ट एरिया में जा रहा है। देन नेक्स्ट इज टाइम टू मार्केट, मतलब कि मेरा मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितनी जल्दी जा रहा है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट मार्केट में कितनी जल्दी जा रहा है। सो बेस्ड ऑन दैट आई विल बी डिसाइडिंग द टाइम टू मार्केट। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर माय बिजनेस सक्सेस। तो ये चार फैक्टर, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारे फैक्टर्स जो है मतलब फाइनेंशियल फैक्टर्स, तो ये सब जो है मिलके मेरे बैलेंस स्कोरकार्ड का पार्ट बनते हैं। अब अ, अगर मैं बैलेंस स्कोर कार्ड के अगर स्टेप्स की बात करूं, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मुझे मेरी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना होता है कि किस क्या रिक्वायरमेंट है मेरे बिजनेस की सक्सेस के लिए। मुझे अपने मयर सिलेक्ट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस एरिया, एंड अगेन आई विल बी डिफाइनिंग माय मयर्स अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस नीड, एंड अगेन आई विल बी डीलिंग विद द पीपल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस एरिया। सो इट इज important for me to understand all these factors. Now what could be the disadvantages of this model? देखो एडवांटेजेस तो क्या है, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मैनिपुलेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगेन एवरीथिंग कम्स विद सर्टेन डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, तो देखो कंफ्लिक्टिंग मेजर्स, जितने ज्यादा मेजर्स उतने ज्यादा कंफ्लिक्ट होने का चांस। एंड अगेन सिलेक्टिंग मेजर्स, अगेन इफ वी हैव सो मेनी मेजर्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड which measures we should be focusing more on. Now interpretation and action, so it is important that okay we need to understand which skills are required in specific area. And for these types of model we need the management commitment, and this is again challenging aspect. Now next is the building block model. Building block model kya hota hai, specifically this model is used for service industry. So whenever you got the service industry related area, you will be suggesting go for the building block model. तो आप देखो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में क्या है, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, तीन तरह के फैक्टर्स हैं, डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। तो डायमेंशन क्या है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। दैट मींस इसमें दो तरह के होते हैं, रिजल्टेंट्स एंड मेरे जो होते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो अब जो मेरे रिजल्टेंट है, मेरा डिपेंड करते हैं डिटरमिनेंट्स के ऊपर। अब वो क्या है, रिजल्टेंट्स मेरे पहले दो, दैट मीन्स कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मेरे नेक्स्ट टू डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। अब वो क्या है, मेरी रिजल्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सी द केपीआईज ऑफ दीज मॉडल विल बी सिमिलर, यू विल फील दैट ओके ये तो रिपीट ही हो रहा है, बिकॉज एक्चुअली एवरीथिंग इज सिमिलर।
सो इफ आई कवर दिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो है मेरे उसमें कवर्ड होती हैं। अगेन कॉम्पिटिटिवनेस, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कितनी है एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर, अगेन आई विल बी मेजरिंग दैट ओके लाइक द कैपिटल स्ट्रक्चर, लाइक मेरा मार्केट में शेयर कितना है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री शेयर एंड एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर, सो आई विल बी कंसिडरिंग दीज एरियाज। नाउ नेक्स्ट इज द क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि क्या देखेंगे, मैं रिस्पॉन्सिवनेस कितनी हूँ मैं। नेक्स्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि यस कि कैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पा रही हूँ। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या देखेगा कि यस की फैक्टर्स की यस कितना डिलीवरी की स्पीड है, रिस्पॉन्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट, एंड अगेन द कस्टमर डिमांड, सो अगेन मैं मतलब डिमांड कितनी जल्दी फुलफिल कर पा रही हूँ। नेक्स्ट इज इनोवेशन, इनोवेशन में मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि यस कि मैं कितनी जल्दी इनोवेट कर पा रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन। अब जितना ज्यादा मैं इनोवेशन में लगाऊंगी उतना ही ज्यादा मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ग्रोथ होगी। सो इट इज ये चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे मेरे पहले दो फैक्टर विच आर माई रिजल्टेंट एंड दीज आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड, माय स्टैंडर्ड्स व्हिच आर माय केपीआईज। सो देखो स्टैंडर्ड्स क्या है मेरे, whenever I have to consider these standard, I need to make sure that whatever standard I will be deciding, that standard should be owned by me, मतलब मेरे पास उस स्टैंडर्ड की ओनरशिप होनी चाहिए। एंड दैट स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल, मतलब वो मेरे कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। दैट मीन्स इफ इट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड अगेन इक्विटी, द स्टैंडर्ड शुड बी सीन एज फेयर फॉर दोस कंसर्न। तो अब देखो क्या है कि वो स्टैंडर्ड जो है उन लोगों के लिए फेयर होना चाहिए जो कि उससे रिलेटेड पर्सन है। तो आगे चलते हैं रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड्स फॉर अचीविंग दो स्टैंडर्ड्स, तो अगर मुझे कोई भी स्टैंडर्ड अचीव करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या रिवॉर्ड होगा। सो ये सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्लियर रिवॉर्ड के रिस्पेक्ट में क्लैरिटी, मतलब कि द ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवॉर्ड हो वो क्लियर होना चाहिए कि इस क्या किसके बदले मुझे क्या मिलेगा, सो दैट आई विल बी मोटिवेटिंग। अगेन मोटिवेशन होना चाहिए कि यस की इट शुड बी मोटिवेटिंग वन, कि यस की मैं उसमें मोटिवेट होती रहूं। Next is controllability. So the performance of employees should only be assessed in the areas which they have the significant control. मतलब कि it should be linked to the areas जहां पर मेरे बिजनेस का significant control है। अब जहां पर हमारा significant control नहीं है वहां पर देखो मेरे पास रिवॉर्ड वैसे नहीं आ पाएगा। Now next is एडवांटेजेस। अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, सो दिस मॉडल के, तो ये देखो ये क्या है कि यस इससे क्या होता है कि हर एरिया के हम फैक्टर्स को लिंक करते हैं एंड यस इट विल एनकरेज एवरी एम्प्लॉय टू सेटल देयर ओन बजट एंड अगेन यस दे आर मोटिवेटेड towards their these standards and their rewards and yes कई बार क्या होता है that yes we have so many measures so it might be confusing कि yes actual में मिलने क्या वाला है। So this is again the challenging thing. Again the next thing is model is only confined to service industry. तो अब next क्या है कि अब again there are certain disadvantages which are again common from the building balance scorecard model because the factors are almost similar. But apart from that you can write okay कि it is specifically for the service industry and हम सिर्फ limited हो जाएंगे service industry के केस में ही। Now next परफॉर्मेंस पिरामिड। सी परफॉर्मेंस पिरामिड क्या कहता है, ये मॉडल क्या है, ये it just like the above model, like it consider the both financial as well as non financial measures and it consider the pyramid type shape. तो yes ये क्या करता है हायरार्की फॉर्म में दिखाता है, like in this form we have the hierarchy of this model and yes it is totally based on the factors that okay कि मैं अप से डाउन एंड डाउन से अप मैं चलती हूँ इसमें एंड यस व्हाट आई कंसीडर इन दिस मॉडल दैट कि यस मेरी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं एंड दे बोथ एंड ऑल द लेवल्स ऑल द फोर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि आई हैव द टॉप लेवल जो कि मेरा स्ट्रेटेजिक लेवल है, वहां पर क्या होता है स्ट्रेटजीज बनती हैं। सो ये जिसमें मेरा कॉर्पोरेट विजन जो है डिसाइड होता है दैट इज मेरा लेवल वन, यहाँ पर मेरा कॉर्पोरेट विजन डिसाइड होता है। then again I have इसको there is some way to read this specific model and what that way is, so this is the way to read and interpret this. We have the four levels। सबसे पहले क्या करते हैं हम
quality, delivery, cycle time, and waste. These factors I need to consider. These are my external effectiveness and these are my internal efficiencies. So ये मेरे क्या है डिपार्टमेंट है that waste control department, cycle time regardingly area. सो एंड अगर मैं इनको अचीव कर लेती हूँ तो मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होगी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी एंड मेरा प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी. एंड इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स आर गोइंग बेटर देन मेरा मार्केट शेयर भी इंप्रूव होगा एंड अगेन मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी है इंप्रूव होगी. एंड इन सब से होने से जो है मेरा कॉर्पोरेट विजन जो है अचीव हो जाएगा. सो वी द मेयर्स आर सेटल्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऊपर से एंड अगेन नीचे से उसको ऊपर तक रीड करते हैं. But yes, if I discuss about the benefits and disadvantages of this specific model and problem of this specific model, benefit क्या है? It links the performance measures, with the organization hierarchy, thus make it possible to link the strategic vision with the day-to-day operations. And we have seen that कैसे हम विजन को उसके डेली ऑपरेशन से जैसे कि क्वालिटी बढ़ेगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो मार्केट शेयर बढ़ेगा एंड मेरा विजन जो है अचीव होगा. सो यस वी आर एबल टू लिंक विथ ईच एंड एवरी स्टेज. एवरी डिपार्टमेंट विल बी असेस्ड इन देयर ओन कंट्रीब्यूशन. तो अब देखो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कस्टमर के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा. सो वी कैन मेजर द वैल्यू एवरी डिपार्टमेंट इज जनरेटिंग. एंड अगेन अब अगर मैं इसकी वीकनेस की बात करूं तो देखो कई बार क्या होता है देयर इज समहाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल एरिया देन देयर विल बी ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेजर. सो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? कॉस्ट रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड एंड कंफ्यूजन की यस हमें क्या करना है. एंड यस मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन इज कि मैनेजमेंट का टाइम ना इन सब में ही वेस्ट हो जाएगा. And again, it mayors with an easy ensure might be given a priority. तो देखो क्या होता है कि yes, कुछ measures जो होती हैं जो कि हमारे लिए easy होती हैं हम उनको priority देते हैं, बाकी measures को जो है हम ignore कर देते हैं. So again, ये कुछ इसमें issue आ जाता है. Now if we are discussing about the qualitative model, तो यहाँ पर what problem could be faced by any organization. तो क्या है देखो बहुत सारे डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हाई लेवल के मैनेजमेंट देते हैं एंड यस दे आर क्वांटिटेटिव बट यस कस्टमर के डिसीजन जो है क्वालिटेटिव है. सो दे माइट बी कंफ्लिक्टिंग विथ ईच अदर. अगेन नेक्स्ट इज क्वालिटी रिलेटेड एरिया. सो क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उन फैक्टर्स के ऊपर जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं एंड दे आर नॉट इजी टू डिफाइन कि एक्चुअली क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है. Again, the information may not be complete and the quality wise it is difficult to monitor. Sometimes it is not possible to get each and every detail of the information and there is no specific formula to calculate the quality information because it is subjective and it ensure that the assured quality. सो यस कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं है कि यस कि मैं कैलकुलेट उसको कर पाऊं. एंड यस मोस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड इन अ वे टू मॉनिटर द क्वालिटी. तो अब बहुत बार क्या होता है कि यस कि ये क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है सेटल की जाती है. नाउ नेक्स्ट इज मेरे पास एरिया विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विच इज लाइकली टू बी टेस्टेड इन एग्जाम. सो द नेक्स्ट एरिया इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट. परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि एपीएम के पेपर में टेस्ट होता ही है. सो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के लिए हमें क्या देखना है? यस दिस इज द पेल. यू हैव टू कंसीडर पेल व्हाइल कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्वेश्चन. पर्पस कि वो रिपोर्ट किस पर्पस के लिए बनी है, व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पस ऑफ दैट रिपोर्ट. वो पर्पस जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से लिंक होना चाहिए एंड अगेन मिशन उससे लिंक होना चाहिए कि ये उस रिपोर्ट में आपका मिशन अचीव होता हुआ दिख रहा है या नहीं. अगेन यू नीड टू कंसीडर दैट हु इज योर डिजायर्ड ऑडियंस. क्या वो शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो बोर्ड मेंबर्स हैं. सो बेस्ड ऑन दैट you will be providing the information in the board because see our board need just summarized report because they don't have that much time. So based on that you will be preparing the report considering who your audience is. Next is information. उसमें information कैसी चाहिए? अब देखो information कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी information कैसी होती है? फाइनेंशियल भी हो, नॉन फाइनेंशियल भी हो, क्वांटिटेटिव भी हो, क्वालिटेटिव भी हो. सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन जिसमें ऑलरेडी रिपोर्ट जो है प्रोवाइड की गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट ओके वो रिपोर्ट सही है या नहीं,
तो बेस्ड ऑन दैट आपको वो इन फैक्टर्स के ऊपर जज करना है कि उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेआउट, मतलब कि उसमें कंक्लूजन दिख रहा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, एंड अगेन लाइक पीछे डिस्क्लोजर नोट्स होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, पिछले साल की फिगर कंपैरिजन पर्पस में अवेलेबल होना चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, क्लमजी नहीं होना चाहिए। सो यस, ऐसा कुछ रिपोर्ट में आप जो है चेक कर सकते हो कि वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज आर बजटिंग। अब बजटिंग में देखो क्या देखना है मुझे, बजट क्या होता है, लाइक जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वेरी सिंपल थिंग, व्हेन एवर यू हैव अ फैमिली फंक्शन एट योर होम, तो आप उसमें भी बजट बनाते हो कि कितना एक्सपेंस आउट करना है, फूड पे कितना करना है, शॉपिंग पे कितना करना है, ट्रैवलिंग पे। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच यू प्री डिसाइड। सो बेसिकली बजट क्या है, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड रिसोर्सेज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, रिफ्लेक्टिंग द मैनेजमेंट रीडिंग ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन। सो ये क्या होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कंसीडर करेगा, पास्ट भी कंसीडर, मतलब ऑब्वियसली पास्ट के बेस पे हम थोड़ा सा एस्टिमेशन लेते हैं, एंड ये हमेशा क्वांटिफाइड होता है। तो हम आने वाले टाइम पीरियड की क्वांटिफिकेशन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ये चलता है कि कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। सो यस, बजटिंग का पर्पस क्या होगा, बजटिंग क्या है कि इसकी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। ये क्या मोटिवेट करता है कि इसकी मेरे एम्प्लॉय जो है कैसे वर्कआउट करेंगे, एंड अगेन यस ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है कि यस की मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर का प्लान क्या है। इट अलाउ टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब मेरी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मुझे बजटिंग से ये पता चलता है। एंड अगेन establish a system of control by comparing the actual result with the budget and take the appropriate action. सो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस रिजल्ट क्या था, आगे का रिजल्ट क्या है, उसके बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या वो मैंने अचीव किया या नहीं किया, या क्या कमियां रह गई हैं। एंड अगेन इनेबल्स अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड मैनेजर्स। सो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की परफॉर्मेंस हम बजटिंग की हेल्प से देख सकते हैं कि यस वो परफॉर्मेंस अचीव भी हो पा रही है या नहीं। And the next one is it provides a formal authorization to manager for expenditure, hiring staff, pursuing and achieving the plans. So इसके बेस पे एक मुझे फॉर्मलाइजेशन मिल जाती है कि ओके इतना मुझे एक्सपेंडिचर करना है, ऐसे स्टाफ मेंबर चाहिए, सो ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज बजटिंग के मेथड। देखो एक सबसे पहले क्या होता है, फिक्स बजट। उसमें क्या है कि इसमें एक सिंगल एक्टिविटी लेवल, जैसे कि 10,000 यूनिट्स, उसी एक्टिविटी लेवल पे बजट बना रही है और वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज नेम ही अपने आप बता रहा है कि फिक्स है, तो ये फिक्स रहेगा, उतनी ही एक्टिविटी लेवल पे रहेगा। सो यस, अब यहाँ पर क्या होता है कि ताकि मैं ज्यादा कंट्रोल कर सकूं उस एरियाज में मैं फिक्स बजट यूज करती हूँ। दूसरी तरफ क्या है, मेरे पास फ्लेक्सिबल बजट, मतलब कि 10,000, 20,000, 30,000 डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लेवल पे हम बजट प्रिपेयर करते हैं। सो इसको मैं फ्लेक्स्ड बजट के नेम से भी जानती हूँ, मतलब कि फिक्स कंडीशन को मोल्ड करके मैं जो बना रही हूँ एक्चुअल लेवल की एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली, दैट इज मेरा फ्लेक्स बजट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, लाइक यस मेरा कंपैरिजन अच्छा होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इसमें आ जाती है। अब डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉस्ट, तो अब दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो क्या डिफरेंस है। देखो फिक्स्ड बजट जो है ये मैं वेरिएबिलिटी के बेस पे नहीं कैलकुलेट करती, एंड यस ये मेरी क्या रहती है, सेम ही रहती है, डजंट मैटर कि मैं कितनी एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट कर रही हूँ। बट ऑन द अदर हैंड इट इट assume दैट द कंडीशन दैट वुड रिमेन स्टैटिक। तो इसमें मैं क्या कंसीडर करती हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन जो है जो कि मेरी फिक्स रहने वाली है। एंड यस मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि यस की मैं एक्चुअल बजट लेवल को कंपेयर नहीं कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लेवल पे, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ सेम ही रहने वाला है। एंड यस द बजट्स हैव अ लिमिटेड एप्लीकेशन। तो ये जो है देखो, बिकॉज हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड एरियाज पे यूज होने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यूज करूं लाइक ये फ्लेक्सिबल बजट, तो फ्लेक्सिबल बजट कौन सा है, जो कि यस मैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी में कंसीडर कर रही हूँ, चीजें सिचुएशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली बजट लेवल जो है चेंज हो रहा है। अगेन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि ये कहाँ पर सुटेबल है, जहां पर मेरे पास चेंजेस ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पर मैं ये बजट जो है यूज कर रही हूँ। एंड अगेन यहाँ पर कंपैरिजन जो है पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मोल्ड कर लेते हैं। एंड यस यहाँ पर ऑब्वियसली ये ज्यादा यूज हो पाएगा, क्योंकि ये हम अनसर्टेनिटी को, चेंजिंग फैक्टर्स को कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट इज रोलिंग बजट, एंड दिस इज समथिंग विच माइट बी टेस्टेड, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। रोलिंग बजट और कॉन्टिन्यूस बजट के नेम से इसको हम जानते हैं।
सो देखो बजट जो है जो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है, और ये कहाँ पर चेंज सूटेबल रहता है, जहां पर मेरे पास फोरकास्टिंग जो है इजीली पॉसिबल नहीं है, ज्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, वहां पर मेरा जो है रोलिंग बजट जो है सूटेबल रहता है। बिकॉज इट इज लाइक मुझे काफी ज्यादा लाइक मुझे कंट्रोल भी चाहिए, एंड अगेन फैक्टर्स जो है काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं, सो वो क्या हो गया, मेरा रोलिंग बजट का एरिया हो गया। सो अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो रोलिंग बजट जो है रियलिस्टिक है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चेंज हो रहा है बार बार। एंड यस, यहाँ पर मैं कंट्रोल ज्यादा कर सकती हूँ, क्योंकि रिसेंट प्लान में चेंज हुआ, मैंने साथ के साथ इसको चेंज कर दिया। एंड नेक्स्ट इज हमारा फोर्स मैनेजमेंट टू टेक द बजट प्रोसेस सीरियसली, क्योंकि इसमें क्या है कि चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आई एम चेंजिंग माय बजट प्लान। सो दैट्स व्हाई माय मैनेजमेंट इज फोकस्ड टू बी फोकस्ड, राइट? सो उसको बोला जा रहा है कि यस, कि आप हर सिचुएशन में अगर चेंजेस आ रही हैं तो उसको ध्यान से कंसीडर करके चलो। बट अगेन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। यस, मेरे बजट जो है ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बार बार मुझे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं बजट को चेंज करूंगी तो टाइम बहुत लगेगा। एंड यस, इससे क्या होगा, बजटिंग वर्क जो है बढ़ने वाला है, एंड might have an put off effect on the manager who would consider the budget on a non value adding due to the frequent budgeting। तो इससे क्या होगा, मेरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज के ऊपर भी हम फोकस ज्यादा करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल बजट। सो इंक्रीमेंटल बजट क्या है, बजट जो है स्टार्ट क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो इसमें क्या कर रही हूँ, पिछले वाले बजट की फिगर्स ले रही हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो रहा है मैं उसमें चेंजेस कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा इंक्रीमेंटल बजट हो गया। तो ये कहाँ पर होता है सूटेबल, जहां पर मेरा बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, राइट? करंट ऑपरेशन जो है इफेक्टिवली चल रहे हैं एंड इकोनॉमिकल है, तो मैं करंट फैक्टर्स में ही थोड़ी बहुत जो है चेंजेस जितनी भी होनी है उन चेंजेस को कंसीडर करके जो है आगे की प्लान कर रही हूँ। और ये कहाँ पर सूटेबल है, जहां पर सिचुएशंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती हैं, वहां पर ये मेरा बजट जो है सूटेबल रहता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस की मैं अगर बात करूं कि यस, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड। तो एडमिनिस्ट्रेटर वाइज देखूं तो ये इजी और क्विक मेथड है, क्यों? क्योंकि जो है सिर्फ मैं हिस्टोरिकल फिगर्स में जितनी जितनी चेंजेस हैं उनको कंसीडर करके चल रही हूँ। तो वो जो चेंजेस को मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, सो दैट मीन्स इट इज इजी, बिकॉज आई डोंट हैव टू मेक अ वेरियर, बहुत ज्यादा लेवल का चेंज मुझे नहीं करना है। And again, on the other hand, prevent conflicts between the department managers since the consistent approach is adopted। तो देखो इसमें conflict बचाएंगे, क्यों? क्योंकि consistent approach है, आप भी वही approach follow कर रहे हो जो मैं follow कर रही हूँ। Again, disadvantages की मैं बात करूं कि इसके क्या क्या disadvantages है, previous पीरियड की जो प्रॉब्लम्स है और इनएफिशिएंसीज है, हम उसमें वही कंसीडर कर रहे हैं, जो पहले था वही वही रहेगा, मैं उसमें कुछ नया नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जो पहले था मैंने बस उसी में प्लस माइनस कर दिया। अगेन, अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी कंटिन्यू, तो देखो मे बी इट कुड हैपन, जो पहले कुछ एक्टिविटीज थी जो कि अच्छी नहीं थी, दे वर नॉट नॉट प्रॉफिटेबल, सो वो आगे भी वही चल रही हैं, सो दैट कुड बी द ट्रबल मेकिंग थिंग। Then again, inefficient form of budget, it may be encouraging wasteful spending by manager just to make sure that their budget expenditure allowance is not reduced next year। So ये देखो क्या होगा कि यस की कुछ ऐसे इनएफिशिएंट मैनेजर्स, जो कि कोई ऐसा मैनेजर है जो कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट? So yes, they make like make the changes in such a way, because they will show the figures in such a way कि yes वो उनकी फिगर्स जो है इन्फ्लेटेड दिखे, ताकि नेक्स्ट ईयर भी जो है उनके अकॉर्डिंगली जो है चेंजेस हो जाए, बिकॉज दे नो दैट कि प्रीवियस ईयर को ही बजट लेके अपकमिंग बजट जो है बनाया जाएगा। सो दे विल बी वर्किंग लाइक मे बी स्लो ऑपरेशंस कंसीडरिंग दैट एरिया। सो ये कुछ हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। तो देखो रोलिंग बजट का है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वहां पर सुटेबल रहेगा, जहां पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है वहां पर मुझे रोलिंग बजट चाहिए होगा। इंक्रीमेंटल बजट जो कि थोड़ा सा स्टेबल वाइज है, वहां पर इंक्रीमेंटल बजट करेंगे, जहां पर मुझे पता है कि कितना एक्सचेंज होने वाला है, नॉन चेंज होने वाला है, वहां पर हम इंक्रीमेंटल बजट करेंगे। और जहां पर मुझे स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं है, वहां पर भी मैं इंक्रीमेंटल बजट जो है यूज करूंगी। देन नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। यहाँ पर क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग नेम से ही पता चला है कि बजट हर एक एक्टिविटी को, हर एक प्रोसेस को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं लेना, जस्ट लाइक ऑपोजिट टू मेरा इंक्रीमेंटल बजट। सो हर एक एक्टिविटी को, हर एक एक्शन को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, अगर वो उसको आपको नेक्स्ट ईयर बजटिंग प्लान में लेके आना है तो।
So yes, zero-based budgeting tries to achieve an optional allocation of resources to the parts of the business where they are most needed. So ये क्या करेंगे, मैं अपने वो areas को consider करूंगी जहां जहां पे वो changes जो है होने वाली हैं. So the budget is suitable in case of discretionary cost for service department and public sector organization. So ये बजट कहाँ पर suitable है, जहां पर सर्विस कॉस्ट इन्वॉल्व है, जहां पर मेरी सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये बजट जो है ज्यादा सूटेबल रहता है. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जिसमें हर एक कॉस्ट को मेरे को जस्टिफाई करना पड़ता है. नाउ अगेन अब इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही ये जो है डिसीजन फैक्ट बनते हैं, रैंकिंग करते हैं एंड उसके एलोकेशन करते हैं रैंकिंग के बेस पे रिसोर्सेज को. सो दिस इज माय जीरो बेस्ड बजटिंग. नाउ नेक्स्ट इज मेरा इसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो देखो, अगर जीरो बेस्ड बजट है, जीरो से स्टार्ट करें, मतलब कि मैं इनएफिशिएंट ऑपरेशंस को तो निग्लेक्ट करके ही चल रही होंगी. नेक्स्ट, इनएफिशिएंट ऑपरेशंस जो है रिमूव होंगे और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा. एफिशिएंसी लेवल जो है इसमें इंक्रीज होगा बिकॉज आई विल बी कंसीडरिंग ओनली द एरियाज विच आर मोर एफिशिएंट फॉर मी. And again, it increase the staff involvement at all levels leading to better communication and motivation. तो अगर मैं ZBB में चल रही हूँ तो देखो मेरा स्टाफ का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा होगा और उनकी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मोटिवेशन भी जो है उनका ज्यादा रहेगा. Now, next what I need to consider is manager are forced to consider alternative and development question attitude. तो देखो मेरे जो है ये मैनेजर जो है ये मोटिवेटेड एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे अगर ये इस बजटिंग एरिया में चले. नाउ नेक्स्ट इज मोर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज. देखो हर बार जीरो एलिमेंट से स्टार्ट करना एक कॉस्टली प्रोसेस भी हो सकता है, टाइम भी उसमें ज्यादा लगेगा. रैंकिंग प्रोसेस कैन बी सब्जेक्टेड व्हेन देयर बेनिफिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ नेचर. तो देखो रैंकिंग जो है वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है. इट में एम्फेसाइज ऑन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स. अब देखो कई बार क्या होगा कि हम हर बार उस खर्चे को जस्टिफाई करेंगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो सही हो सकता है बट इन द लॉन्ग रन दैट माइट नॉट बी सूटेबल. सो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है. एंड यस, ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट हैव रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट स्किल और द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोवाइड द सूटेबल इंफॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट द डिसीजन पैकेज. सो अगर मैं ये बात करूं कि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को वो स्किल्स, वो एरियाज चाहिए ही नहीं हो डिसीजन पैकेज के लिए, वो अवेलेबिलिटी ही नहीं है. सो दैट कुड बी अ चैलेंजिंग थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया. सो बस अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ZBB कहाँ पर सूटेबल होता है, जहां पर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, हर एक कॉस्ट एलिमेंट को जस्टिफाई करना है, वहां पर मेरा ZBB जो है अप्लाई होगा. नाउ अब important terms to understand before starting the ABB. तो ABB स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है. वो क्या है? एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. आपको ABC कॉस्टिंग आपको पता होगा. ABC कॉस्टिंग इट इज द एरिया विच वाज कवर्ड इन MA आल्सो, PM आल्सो. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि हम एक्टिविटी के बेस पे कॉस्टिंग करते हैं. सो यस, हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स देखते हैं. एंड यस, हम क्या देखते हैं कि यस की जो जो जिस जिस एक्टिविटी के बेस पे वो खर्चा आ रहा है उसी खर्चे को एलोकेट करना है उसी कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे. एंड यस, इट इज एप्लीकेबल इन द एरियाज जहां पर मेरे पास जो है एक्टिविटीज रिलेटेड कॉस्ट जो है ज्यादा है, ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट जो है ज्यादा है, वहां पर ABC जो कॉस्टिंग है वहां पर सुटेबल रहती है. सो इसको कैसे करना होता है, कॉस्ट को कॉस्ट पूल करते हैं एंड देन कॉस्ट ड्राइवर जो है उस एक्टिविटीज को एलोकेट करते हैं. सो एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई विल बी कैलकुलेटिंग द एक्टिविटी के रिगार्डिंग द कॉस्टिंग. सो अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स में बोलूं तो क्या है कि इससे मेरा ओवरहेड का खर्चा सही तरीके से एलोकेट होगा बेस्ड अपॉन द रिसोर्स रिक्वायरमेंट. एंड यस, इससे मुझे हर खर्चे के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अच्छे से मिलेगी. एंड यस, कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में भी ये सूटेबल रहता है. एंड यस, मैं ओवरहेड के खर्चे को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड के बेस पे नहीं कर रही हूँ, एक्टिविटीज के बेस पे कर रही हूँ. जिस एक्टिविटी मतलब जैसे एक खर्चा जो जहां पर ज्यादा एक्टिविटीज है उसको उसी बेस पे एलोकेट होगा. इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन जस्ट एज ए नॉर्मल कोर्स पे. सो इसलिए हमारा खर्चे का एलोकेशन जो होगा फेयर एलोकेशन बेस पे होगा. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? ABC requires the identification of cost pool and cost driver. So ABC में क्या है, मेरे पास cost pool भी है और cost driver भी है एंड जिसके कारण वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है. It is important to find the realistic relationship between the cost driver and the activities. So अब देखो मेरे लिए क्या है, मुझे ये देखना जरूरी है कि ये कोई भी एक्टिविटीज है उनके बीच में क्या रियलिस्टिक रिलेशनशिप है.
तो उसी के बेस पे मैं डिसाइड करूंगी। एंड यस, एबीसी विल नॉट बी बेनिफिशियल इन अ मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो एबीसी कॉस्टिंग है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट? बिकॉज यू नो वहां पर, जहां पर, कहाँ पर सूटेबल नहीं होगा, जहां पर मेरे प्रोडक्शन ओवरहेड है कम है। जहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड है ज्यादा है, वहां पर ये सूटेबल रहेगा। एंड अगेन यस, अगेन यू नो लाइक मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी इसमें। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। एंड एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर ही बेस होता है एबीएम। दैट मीन्स कि एबीएम क्या करता है कि सारे मैनेजमेंट के पर्सन जो है एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं, रादर देन जस्ट ऑपरेशनल एरियाज के ऊपर। एंड वो ये देखते हैं कि ये कौन सा खर्चा क्यों हो रहा है, क्या मेरा खर्चा इंपॉर्टेंट है, कैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की खर्चा जो यू नो द वर्क कुड बी मच बेटर। सो यस कि यू नो कौन कौन से खर्चे जो हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को यू नो अफेक्ट करते हैं। सो नाउ अब जो मेरा यू नो एबीएम है, वो दो तरह के डिसीजन मेकिंग्स में हेल्प करता है, एक स्ट्रैटेजिक एबीएम और ऑपरेशनल एबीएम। सो देखो यू नो स्ट्रैटेजिक यू नो एबीएम क्या कहता है कि डूइंग द राइट थिंग, मतलब वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड है, मतलब मैं जो काम करूं सही काम करूं। एंड यस, ऑपरेशनल एबीएम क्या कहता है कि काम सही तरीके से करूं, इफ आई गिव यू द क्रक्स ऑफ दैट एरिया। नाउ आफ्टर दैट वी हैव एबीबी, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, एबीसी कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कर रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे बजटिंग कर रही हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट कि वो मैं वेरिएंस एनालिसिस भी कर रही हूँ। सो मैं क्या करूंगी, मेरे को प्रोडक्शन वॉल्यूम देखना है, एंड देन उसके बेस पे मैं डिमांड देखूंगी, मैं रिसोर्सेज देखूंगी, उनको क्वांटिफाई करूंगी, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल बी टेकिंग द एक्शन। And again, I will be considering the advantages और disadvantages। देखो advantages क्या है, क्वालिटी बेस्ड मैनेजमेंट क्यूबीएम के साथ मैं चलती हूँ, टीक्यूएम के साथ चलती हूँ। एंड यस, कंपैरिजन जो है मेरे पास इजी हो जाता है कि एक्चुअल वर्सेस द यू नो द बजटेड वन। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो इस सब में मेरा टाइम बहुत जाएगा। एंड यस, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे फॉलो करती हूँ, जो कि मेरे लिए समहाउ डिफिकल्ट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं बजटिंग बनाऊं नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, तो नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का अगर बजट की बनाऊं तो वो क्या होता है, ये सिर्फ मनीटरी के ऊपर नहीं होता, नॉन मनीटरी सोर्सेज को भी कंसीडर करता है। अगेन यू नो लाइक यू नो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इसमें हम कंसीडर करते हैं। एंड यस लाइक यू नो सोशल वेलफेयर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम इसमें कंसीडर करते हैं। And again, in case of non-financial factors, I will be considering the need of multiple stakeholder, not just only one stakeholder. So yes, and again, यहाँ पर मेरे पास क्या इशू अराइज हो सकता है कि इनकी जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट से आती है। So that could be a challenging thing for me, for my business related areas. So now, we will be covering the current development and emergence issue in my part 2 of this revisionary video. So, till then, guys, make sure that you are revising your topic areas, you know, very well, and I will be launching the next part very soon. So, stay tuned, subscribe my channel.